Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. Today's topic is alternating current through resistor R and alternating current through pure ohmic resistance R. Both have the same mean. So for this we have to draw a circuit having resistance R, I is current flowing through it, and here is a source of EMF which is the source of alternating current as shown by the sign that E is equals to E naught sine of omega t. We have to consider a circuit that contains pure ohmic resistance. हमने एक सर्किट लिया जिसमें हमारे पास pure ohmic resistance है जिसमें से I current flow कर रहा है और उसमें बाहर से EMF as a source to apply किया गया है जो कि alternate current का है, that is E is equal to E naught sine of omega t. So let E is equal to E naught sine of omega t is applied alternative EMF. Okay, so I is the current flowing in the circuit and using Ohm's law V is equals to IR होता है, but यहाँ पे हमने EMF अप्लाई किया है, so we can say that E is equals to IR and I is equals to E divided by R. So I is equals to E की वैल्यू पुट की है बेटा E naught sin omega t divided by R, that is equation number 1. We want I to be maximum. हम चाहते हैं कि जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाए and I will be maximum. कब मैक्सिमम होगा? जब sin omega t is equals to क्या होगा? 1. Because sin of omega t is equals to 1, that is the maximum value of the sin of theta. So I is equals to I naught आ जाएगा, that is a maximum value. I naught is equals to E naught divided by R cross 1. ठीक है, क्यों? क्योंकि I naught किसके बराबर हो जाएगा? E naught divided by R sin of ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1, तो यहाँ से ई नॉट डिवाइड बाई आर इंटू 1 हो जाएगा. वेयर आई इज इक्वल टू आई नॉट है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आई नॉट पुट की हुई है. सो आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाय इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय आर. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. Now you put equation number 2 in 1. You got I is equals to I naught sin of omega t. That is equation number 3. अब हमें पता है E is equals to E naught sin of omega t होता है. That is equation number 4. और जो ये थीटा है ये आपको बताता है फेज के बारे में. Now from 3 and 4 it is clear that EMF and current are in the same phase. Phase difference phi is equals to 0. सेम फेज का मतलब ये है कि अगर मैं फेज डिफरेंस कोई भी ले रही हूँ दैट वुड बी इक्वल टू 0. सेम फेज का मतलब कोई भी इसमें फेज डिफरेंस नहीं है. सो अब आप देख सकते हो हियर इज द ग्राफ ऑफ द E एंड हियर इज द ग्राफ ऑफ द I. अब देख सकते हो आप दोनों ही यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. बोथ आर मेकिंग द साइन कर्व, दैट मीन्स फेज डिफरेंस बिटवीन टू इज 0. फाई इज 0 हियर. सो फेजर जो है arrows with rotate, two open arrows rotate counterclockwise anti-clockwise about the origin with angular velocity omega. फेजर डायग्राम अलग से बनती है हमेशा. फेजर डायग्राम बेसिकली ये होती है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम आई और ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द ओमेगा टी. ओके, तो जो हम ओमेगा टी की डायरेक्शन लेंगे आप देख सकते हो दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस ओमेगा टी इज हैविंग द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है एंटी क्लॉकवाइज. और आई नॉट और ई नॉट में फेज डिफरेंस 0 है, इसीलिए दोनों एरोस इधर को शो किए हुए हैं बिकॉज बोथ हैविंग द फेज डिफरेंस 0. पर दोनों की जो मैक्सिमम अब देख सकते हैं आप, इसकी मैक्सिमम ज़्यादा है ई नॉट की, इसकी मैक्सिमम ई नॉट के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए आई नॉट को नीचे शो किया हुआ, ई नॉट को अपर में शो किया हुआ. नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर. वी हैव टू कंसीडर अ कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस सेल. जैसे कि रेजिस्टेंस का होता है उसी तरह से इंडक्टर की होती है सेल्फ इंडक्टेंस, that is represented by L. Let an alternating EMF E is equals to E naught sin of omega t is applied. Let I di divided by it is the rate of change of current in the coil. अब ये आपको सर्किट दिख रहा है, ये यहाँ से क्लोज है. This one is a closed circuit here, and this is a applied voltage having current I, and here is the inductor having self inductance N. So induced EMF जो भी coil के अंदर आएगा that would be E induced is equal to minus L di by dt. वो हम कर चुके हैं by applying the Faraday's law. Okay, so E induced is here is minus L di by
dt, and in order to maintain the current in the circuit we can say that applied EMF is equals to negative of induced EMF, कि जितना हमने अप्लाई किया है EMF वो induced EMF के नेगेटिव होगा। ओके, सो E इज इक्वल्स टू माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें ये हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से E किसके बराबर आ गया, पॉजिटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी, यानी कि अप्लाइड EMF पॉजिटिव में है और इंड्यूस्ड EMF किसमें है, नेगेटिव में। अब डी आई हमें पता है दैट इज E डिवाइड बाई एल इंटू डी टी होता है, और उसके बाद E की वैल्यू बेटा पुट की है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई एल इंटू डी टी। इसके बाद अब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट निकाला है तो इनको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, दैट वुड बी डी आई का इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया। साइन ऑफ ओमेगा टी का जब मैंने इंटीग्रेशन किया मेरे पास आ गया माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा ई नॉट डिवाइड बाई एल, तो ओमेगा बाहर आ गया दैट इज माइनस ऑफ ई नॉट ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी है, देखिए कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, यहाँ से मैं साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकती हूँ, दिस पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। सो यहाँ से आई किसके बराबर आ गया, ई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन ऑफ थीटा होता है एज इट इज अ ऑड फंक्शन, तो वी वांट आई टू बी मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम कब होगा, जब इस साइन की वैल्यू क्या होगी 1, that means sin of omega t minus pi by 2 is equals to 1, that is the maximum value. So I is equals to I naught here, I naught is equals to E naught divide by omega l, क्योंकि इसको मैंने 1 कर दिया already to get the maximum value। तो again मैं second equation को first equation में put करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा I is equals to I naught sin of omega t minus pi by 2। This one is equation number 3rd। अब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, क्लियरली अब इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा है किसका, पाई बाय 2 का। 3rd and 4 इट इज क्लियर दैट E लीड्स आई, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है इसका मतलब E आगे है I से बाय फेज एंगल पाई बाय 2, दैट मीन्स, और हम ये भी कह सकते हैं I लैग्स बिहाइंड E, यानी कि I जो है वो पीछे है E से बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2। सो ये इसकी फेज डायग्राम है बच्चे। अब देखिए पाई बाय 2 से लैग बिहाइंड है क्या, आई, तो इसी वजह से ईएमएफ तो हमेशा इसी डायरेक्शन में ही रहेगा 0 से स्टार्ट होके, और इसके ओमेगा टी इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो आई है दैट वुड बी हैविंग अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, पर पीछे है तो दैट वुड बी कम्स इन दिस अंडर द एक्स एक्सिस दैट इज आई नॉट, and you can say that both having an angle of pi by 2, क्योंकि दोनों में ही pi by 2 का डिफरेंस आ रहा है। सो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल, इसको मैंने जब कंपेयर किया आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई आर, तो यहाँ से मेरा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एल आ जाएगा, ऑब्वियसली ई नॉट के साथ ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो ओमेगा एल है उसके जो यूनिट्स होंगे वो रेजिस्टेंस वाले होंगे, दैट इज ओहम, एंड एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जो ओमेगा एल है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, और उसको हम रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने सिंपल वायर का नाम दिया है तो उसका नाम चेंज करके हमने क्या लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू एक्स के पैर में ये एल लिखा हुआ है, एंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू एन एसी। अब ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब एक्सएल हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, दैट इज 2 पाई न्यू इंटू एल, क्योंकि ओमेगा एल इंटू एक्सएल है ना बेटा, ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2 पाई न्यू इंटू एल। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो एक्सएल है यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है डीसी करंट के लिए तो रिएक्टेंस भी क्या होगी, 0, यानी कि इंडक्टर जो है वो डीसी के लिए कोई भी ऑपोजिशन ऑफर नहीं करेगा। और रेजिस्टेंस के लिए भी डायरेक्ट करंट के लिए हमेशा इस तरह से सिंगल लाइन आती है फॉर द डीसी करंट, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। एंड हियर इज अ ग्राफ फॉर द इंडक्टर, और इंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे, दिस वन इज, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पर जो रेजिस्टेंस है उसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है डायरेक्ट करंट की, ठीक है, डायरेक्ट करंट के केस में रेजिस्टेंस का ग्राफ इस तरह से बनेगा, दैट वुड बी अ
लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पर इंडक्टर के लिए दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.